ओके सो डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स के पीवाईक्यूज देखते हैं एक्चुअली आई विल ट्राई टू बी रेगुलर नाउ। ठीक है। सो इसमें जैसे 2022 के पीवाईक्यू अगर देखे जाए तो ये तो नॉर्मल फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट से है राइट। दिस इज फ्रॉम प्रोजेक्टाइल डायनेमिक्स राइट एंड दिस इज strings uniform catenary you can say. This is stability of equilibrium and this thing can be this is principle of virtual work, and again this can be solved by principle of virtual work, right? So यही सब topics है so in fact important है. All these we have already taken care of. So let's solve first question. A body of weight W rests on a rough inclined plane of inclination theta. The coefficient of friction mu being greater than mu is greater than tan theta. ठीक है. This condition is given. Find the work done in slowly dragging the body a distance b up the plane. This is the inclined plane, right? Let's say the body is somewhere here. So this is in fact dragged by some force. Let's say the force is p. It is dragged by distance b, right? Up the plane and then dragging it back to the starting point. फिर वापस इसको यहाँ से यहाँ तक लाया जाता है. The applied force being in each case parallel to the plane. Then what is the work done by this applied force? That is what being asked. Yeah, find the work done in slowly dragging the body a distance b up, right? So देखो इसमें ये जो कंडीशन दी है इसका क्या मतलब है कि वी नीड अ फोर्स हियर समवेयर और म्यू ग्रेटर देन tan थीटा मींस इसको जब हम ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे राइट. इसका मतलब ये है कि इफ दिस म्यू इक्वल्स टू tan थीटा इज द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम इफेक्ट राइट. सो ये चीज है इसका मतलब व्हेन वी से दैट म्यू इज ग्रेटर देन tan थीटा तो वी नीड सम फोर्स टू बेसिकली ड्रैग दिस ब्लॉक अप. So इसमें simple see we can see that force balances we can see what are the forces on this. There will be this body weight right or the body weight mg we can say and this will be that way and यहाँ पे ऐसे normal होगा right. और जैसे इसको हम अप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा म्यू एन राइट. सो तो जब यहाँ से भी कैसे देखो नॉर्मली इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट सो इट वोंट डू एनी वर्क बट दिस mg if this thing is theta this will also be theta so this force will be mg cos theta and this will be basically perpendicular to this and perpendicular to this. Yeah, this will be mg sin theta. Okay, so normal is there friction is there right. So इसमें अगर फोर्सेस की बात करें जब भी डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो इसमें mg cos थीटा कंपोनेंट्स की वजह से देयर वोंट बी एनी वर्क बट mg sin थीटा की वजह से वर्क क्या होगा mg sin theta and into displacement in the direction of force which is b but because the force is in the negative direction of displacement so this will be that way. but जब इसको वापस हम ड्रैग करेंगे तो mg sin theta will be in the direction of the displacement so that time the work will be mg sin theta into b. This will be plus. So this is the work due to mg sin theta. और फ्रिक्शन की बात करें देखो फ्रिक्शन जब अप जा रहे होंगे तो फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा तो म्यू एन सो है और डिस्प्लेसमेंट इसका इस डायरेक्शन में क्या है म्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट इज बी. और जब यहाँ से हम इसको वापस ड्रैग करेंगे बी डिस्प्लेसमेंट ही कर रहे हैं तो दिस टाइम द फ्रिक्शन विल बी ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इनफैक्ट इस बार भी जो होगा माइनस म्यू एन बी है सेकेंड टाइम भी यही होगा सो टू माइनस म्यू एन बी दिस विल बी द टोटल वर्क. ठीक है. दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स वी कैन से बिकॉज ओवरऑल तो बॉडी वी कैन से इक्विलिब्रियम में राइट. सो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि इससे देखो ये तो कैंसिल हो गया दिस थिंग एंड दिस थिंग इज कैंसिल आउट तो टोटल वर्क जो आपके पास है वो क्या आ गया टू म्यू बी एन
एन क्या देखो इसमें, देर इज नो मोमेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द this plane, right? So n is balanced by mg cos theta. If we balance force is perpendicular to the plane, right? So n equals to mg cos theta. So n की जगह mg cos theta we can put. So this will be the work done by the applied force, because friction जो है उसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल वर्क माइनस आ रहा है, तो उतना ही पॉजिटिव वर्क होगा अप्लाइड फोर्स की. देन ओनली वी कैन से कि बेसिकली डायनेमिक की प्रॉब्लम है, इसको हमने स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया, राइट? सो द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, टोटल वर्क by applied force is this. Okay, so this was simple concept of friction in fact, right? So this will be the answer. Second question, a projectile is fired from a point O with velocity root 2gh and hits a tangent at the point P. In the plane, the x is OX and OY being horizontal and vertically downwards lines through the point O respectively. So that if the two possible direction of projection be at right angles, then x square equals to 2hy. This is the first thing we have to show. And then one of the possible directions of projections bisect the angle P or X. 10 marks. ठीक है. So क्वेश्चन 2 जो हमारे पास है, क्वेश्चन 2 में क्या हो रहा है कि देर इज दिस, मैं रेफरेंस इस टाइप से दिया है, OY is vertically downwards, the question says, and we are projecting a particle from here and it hits a tangent at point P with the coordinates of which are given as XY. ठीक है, तो अब मान लो ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी u है, ये जो एंगल है लेट्स से दिस इज अल्फा, राइट? और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें पी को, तो ये जो एंगल है इसको लेट्स थीटा बोल देते हैं. ठीक है, तो वी नो दैट ट्रेजेक्टरी जो होती है प्रोजेक्टाइल, दिस इज अ प्रोजेक्टाइल, राइट? इन द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी दिस मोशन इज देयर. सो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय y इक्वल्स टू x tan जो भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है माइनस. अच्छा देखो इसमें बिकॉज ग्रेविटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई सेंस, ठीक है, तो प्लस जी लेंगे हम. जनरली व्हाट हैपेंस इन प्रोजेक्टाइल वी थ्रू द बॉल अपवर्ड्स वर्टिकली अपवर्ड्स, सो वी टेक एक्सप्रेशन एज माइनस जी, बट बिकॉज इन दिस डायरेक्शन द क्वेश्चन सेज दैट ओ वाई इज टेकन एज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सो यहाँ पे विल टेक प्लस, सो 1/2 हाफ 8t स्क्वायर, टी क्या हो गया आपका x डिवाइड बाई u कोस एल्फा. ठीक है, ये सब चीजें कवर्ड इन दैट प्रोजेक्टाइल चैप्टर, राइट? सो ये चीज है. अब उसने देखो हमें कुछ तो दिया है, इनिशियल वेलोसिटी आई थिंक इसकी रूट टू जी एच, इनिशियल वेलोसिटी इज रूट टू जी एच. ठीक है, सो अगर इनिशियल वेलोसिटी मीन्स एक्स टेन एल्फा प्लस g/2 एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर मीन्स 2gh, कोस स्क्वायर एल्फा ऊपर जाके सेक स्क्वायर एल्फा वी कैन राइट. सो यहाँ से वी कैन से दैट y इक्वल्स टू एक्स टेन एल्फा प्लस 1/4, देखो जी से जी हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एच, sec square alpha को we can write 1 plus tan square alpha, because in the question it is given that the possible direction of projections are perpendicular. There are two possible direction of projection to hit point P. ठीक है, this point P of course will lie on the trajectory, so we have put this point x, y on the trajectory, right? अब इसमें ये हमें गिवन है दैट जो अल्फा है उसके दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, एंड फर्दर इट इज गिवन दैट सम ऑफ दीस टू इज 90 डिग्री. ठीक है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. भाई जो है या पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन भी एट राइट एंगल्स, राइट? मींस जो प्रोजेक्शन की डायरेक्शंस है, मतलब जैसे एक प्रोजेक्शन की डायरेक्शन मान लो एक ये है, ये क्या है, इनके बीच का जो एंगल है वो 90 है. मींस इफ दिस इज अल्फा 1 एंड दिस इज अल्फा 2, देन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज 90 एक्चुअली. अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज 90, और वी कैन से दैट अल्फा 2 इज 90 प्लस अल्फा 1, ऐसा हम बोल सकते हैं. अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 90 नहीं है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 90 है, प्रोवाइडेड लेट्स अज्यूम दैट अल्फा 2 इज बिगर देन अल्फा 1. वो वी कैन टेक, राइट? तो यहाँ पे हमें जो गिवन है, वी हैव अल्फा 2 इक्वल्स टू 5/2 प्लस अल्फा 1. अगर देखो दोनों तरफ, बिकॉज टेन अल्फा यहाँ से वी कैन से दैट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 इज क्वाड्रेटिक इन टेन अल्फा. सो
there will be two roots of this quadratic, tan alpha 1 and tan alpha 2. If we have some relation between tan alpha 1 and tan alpha 2, then we are done, right? So यहाँ से अगर दोनों तरफ से tangent ले ली जाए तो tan alpha 1 equals to tan pi by 2 plus alpha 1, that means minus cot alpha 1. और इसको आप लिख सकते हो, this cot alpha 1 is nothing but 1 by tan alpha 1, so this will be tan alpha 1 tan alpha 2 equals to minus 1, right? This we can say. तो ये वाली चीज मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट इज -1 फॉर दिस क्वेड्रेटिक, क्वेड्रेटिक 1 वी कैन से। तो अगर इसको सोल्व कैसा है, अब देखो इसमें अगर इसको थोड़ा रीअरेंज किया जाए तो दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4h टेन स्क्वायर एल्फा प्लस एक्स टेन एल्फा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4h माइनस वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वेड्रेटिक। तो the product of roots tan alpha 1 and tan alpha will be two roots of this quadratic. The product of root is c divided by a. C is here x square by 4h minus y divided by a, which is x square by 4h. But this should be -1 by the given condition. This should be -1. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x square by 4h minus y equals to minus x square divided by 4h, और ये तो दोनों सेम चीज है. So this is x square by 2h minus y equals to 0, or we can say that x square equals to 2hy. This is what we were asked to prove. First part is this, right? Second part, what is second part? Second part is one of the possible direction of projection bisects angle POX. ठीक है, तो ये इसी का implication है. इनफैक्ट हमें ये प्रूव करना है that this thing, this theta जो है, theta is bisected by alpha. कहने का मतलब है कि टू जो आपका alpha bisect theta means 2 alpha is your या थीटा बाई 2 इज अल्फा वी कैन से. तो हमें ये प्रूव करना है कि थीटा इज नथिंग बट 2 अल्फा. ठीक है, देन मींस दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. जो कंडीशन हमने डिराइव की एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2hy, उसके बाद इफ वी सी वी हैव टू प्रूव दैट दिस थीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा. तो देखो यहाँ से थीटा तो हम अगर इसको ज्वाइन कर दें तो यहाँ से ये, तो ये चीज को हमने थीटा बोला है. सो टेन थीटा की बात करें, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट? तो टेन थीटा इज नथिंग बट ये डिस्टेंस तो y है और ये डिस्टेंस x है, तो टेन थीटा इज y बाई एक्स. दिस वी कैन से. ठीक है, और टेन एल्फा की बात करें तो एल्फा तो हमें ट्रेजेक्टरी से मिलेगा, राइट? सो हमें ये तो पता है कि y इक्वल्स टू एक्स टेन एल्फा प्लस 1/2, और जो भी हमने ट्रेजेक्टरी निकाली इनफैक्ट ट्रेजेक्टरी जो थी हमारे पास ये थी y इक्वल्स टू एक्स टेन एल्फा प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, राइट? तो ये चीज हो गई. अच्छा हाँ, हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स स्क्वायर जो आया हमारा, that was 2hy, right? That was the in fact proof of first part. This way already proved, so we can use this thing now. Y equals to x tan alpha plus x square को we can write 2hy divided by 4y 4h 1 plus tan square alpha. और देखो यहाँ से h से h कैंसिल हो गया. दिस इज x tan alpha प्लस y by 2 1 plus tan square alpha, we can say this is y, और y वाली चीज को एक साथ क्लब कर लो. दिस इज 1 माइनस half minus 1/2 tan square alpha equals to x tan alpha, right? This we can write, or we can say that y by x equals to tan alpha divided by ये क्या, half minus half tan square alpha, or we can say this is 2 tan alpha divided by 1 minus tan square alpha, right? But this is formula of tan to alpha, right? तो यहाँ से, और y by x तो हमने देखा है कि tan theta, right? That we have already seen. But y by x जो है that is nothing but tan theta. तो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया था, थीटा इक्वल्स टू 2 अल्फा, जो कि हमें प्रूव करना था. Hence proof. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन. ठीक है, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन इनफैक्ट, शुड हैव बीन 15 मार्क का इनफैक्ट. ठीक है, सो ये हो गया. अब देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है आपका a cable a cable of weight W per unit length, right? A length 12 hangs from 2 points P and Q in the same horizontal line. So that the span of cable is 2L times 1 minus 2H squared divided by 3L square, where H is the sag in the middle of tightly stressed position. देखो स्ट्रेस स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये, राइट? तो हमें तो अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है स्ट्रेस स्ट्रिंग में, राइट? ओके, सो दिस इज अ 20 मार्क क्वेश्चन, यूनिफॉर्म कैटनरी, ठीक है? So basically, we have given length 2L, 2 points P and Q between which this cable is hanging. We have sag H, and then we are asked to find the span. ठीक है? So देखो इसमें hmm, the question says that there are 2 point P and Q in the same horizontal line, and a cable is hanging over these 2 points, right? So ये देखा जाए तो this is a uniform catenary. Let's say this is 0 0, then this point will be 0 comma C, right? और ये जो भी सेग का मतलब होता है ये वाली हाइट, दिस इज गिवन एज एच, एंड जो स्पान होता है लेट्स से ये लेंथ ए है, ये भी ए है, तो स्पान क्या होगा यहाँ पे? स्पान इज नथिंग बट 2 ए, ठीक है? अच्छा देखो ये जो है यहाँ से हम मेजर करते हैं आर्क लेंथ, टोटल लेंथ इज 2L, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी L होगी, राइट? फर्दर अगर इसमें, ठीक है, अब देखो कैटनरी की इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में वी कैन राइट, वन ऑफ द इक्वेशन इज दिस, वन ऑफ द रिलेशन इज दिस, S इक्वल्स टू सी साइन ऑफ हाइपरबोलिक x बाई सी। और देखो इस पॉइंट पे अगर 8 पॉइंट पी की क्यू की बात करें, 8 पॉइंट क्यू, तो देखो आर्क लेंथ तो L है, बिकॉज दिस इज हाफ ऑफ आर्क टोटल लेंथ, तो दिस इज L। और यहाँ पे अगर दूसरी चीज C, तो चलो C है, और x की बात करें तो A है। भाई यहाँ से जो है ये दिस इज 0 0, तो ये जो लेंथ है x कोऑर्डिनेट तो यहाँ से पता चल जाएगा हमें, दिस पॉइंट विल बी A कोमा y, where y is the coordinate of q, and this will be minus a comma y, where y is the y coordinate of q with respect to this origin, right? This c is known as parameter of catenary, right? तो ये हमारे पास आ गया, तो इसमें अगर ये पुट करें तो L इक्वल्स टू सी साइन ऑफ हाइपरबोलिक a डिवाइड बाई c, ये आ गया हमारे पास रिलेशन। और यहाँ से वी कैन से दैट साइन ऑफ हाइपरबोलिक a डिवाइड बाई c इज L डिवाइड बाई c। देखो दिस c आल्सो वी डोंट नो एज ऑफ नाउ, राइट? तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट, यहाँ से वी कैन से दैट a बाई c जो होगा दिस इज साइन ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स L बाई c, और दिस इज log L बाई c प्लस रूट ऑफ 1 प्लस L स्क्वायर डिवाइड बाई c स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन आ गया, तो a इक्वल्स टू c को इधर ले जाओ, और 2a इक्वल्स टू 2c, यही तो स्पान है, दिस इज व्हाट वी नीड। तो हमें c पता हो जाए एक तो, L तो चलो गिवन ही है, और उसके बाद हम अप्रोक्सीमेशन कुछ करेंगे। c के लिए देखो 8 पॉइंट q की बात करें, तो वहां पे हमें पता है कि जो आर्क लेंथ है वो तो L है, ठीक है? और y कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो क्या होगा y कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट q का y कोऑर्डिनेट्स विल बी, देखो ये लेंथ c है, और ये और शेप जो है h की होना है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? c प्लस h, तो 8 पॉइंट q दिस y विल बी c प्लस h। y c प्लस h, राइट? ये चीज ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल, अच्छा फर्दर वी नो दिस रिलेशन, राइट? दैट सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दिस इज वन ऑफ द रिलेशन ऑफ कैटनरी। तो सी स्क्वायर प्लस ये एल है, और वाई आपका सी प्लस एच है, तो यहाँ से वी कैन से दैट सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ch।
और जो कैंसिल हो रहा है उसको भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से इनफेक्ट सी मिल गया हमें, दिस इज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2h, दिस इज सी। एल एंड एच आर गिवन, सो सी वी नो। और तो यहाँ से हमें जो स्पान मिला वो क्या मिला, स्पान मीन्स 2a, this thing is 2c, 2c means l square minus h square divided by h and log of l by c. L divided by c means l square minus h square and 2h plus root of 1 plus l square divided by c square, right? This is 1 plus l square minus h square divided by l square divided by c square, no? So this thing is l square divided by c square means l square minus h square का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका 4h स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, सो दिस इज एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच लोगरिदम ऑफ 2lh प्लस, देखो इसमें इस चीज को अगर हम ऐसा लिखें बेसिकली ये क्या है, चलो ठीक है सिंप्लीफाई कर दिया जाए, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एल स्क्वायर एच स्क्वायर, राइट? दिस वे वी कैन राइट। एंड ये लोग के अंदर ये डिवाइड बाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच, दिस इज द स्पान मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ, देखो ये चीज को अगर हम ओपन करें तो दिस इज एल पावर 4 प्लस एच पावर 4 माइनस 2l स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस 4l स्क्वायर एच स्क्वायर, सो प्लस हो जाएगा ये। तो दिस इज नथिंग बट 2lh, तो ऐसे का सही है, और दिस इज एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट रूट ऊपर है तो रूट से रूट हट जाएगा और रूट से स्क्वायर जो, तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। और इसको आप लिख सकते हो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच log ऑफ, देखो ये क्या हो गया, एल प्लस एच का होल स्क्वायर, एल प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये हो गया एल माइनस एच एंड एल प्लस एच, तो एक एल प्लस एच तो कैंसिल हो गया, एक एल प्लस एच ही रहेगा। सो दिस इज एल प्लस एच डिवाइड बाई एल माइनस एच, तो दिस इज द स्पान। अब हमें जो वो पूछ रहा है वो अप्रोक्सीमेशन के बाद जो रिजल्ट है देखा जाए तो दिस इज द एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। अब इसमें देखो अगर एल स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो 1 माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और ये हो गया आपका एच डिवाइड बाई एल। यहाँ पे देखो एल स्क्वायर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो एक एल तो यहाँ पे चलेगा, एक एल यहाँ पे रह जाएगा। और लोग को देखो, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, लोग 1 प्लस एच डिवाइड बाई एल एंड 1 माइनस एच डिवाइड बाई एल, राइट? दिस वे वी कैन राइट फर्दर, देखो वी नो दैट लोग 1 प्लस एक्स जो होता है वो क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, अप्रोक्सीमेशन व्हेन एक्स टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन माइनस एक्स पावर 5 डिवाइड बाई 5। तो अगर x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स कर दो, एक्स स्क्वायर पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा इनफेक्ट, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 डिवाइड बाई 4, राइट? तो ये हो गया आपका माइनस, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा इनफेक्ट, हर जगह माइनस हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर इससे ये माइनस कर दिया जाए तो ये क्या होगा, log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स करें अगर हम लोग, सो दिस थिंग विल बी व्हाट, 2 तो बाहर ले लो, एक्स से एक्स मतलब जो ये इवन ओड पावर्स है ना वो ऐड हो रही है, एक्स क्यूब बाई 3 एंड एक्स और 5 डिवाइड बाई 5 एंड सो ऑन, राइट? और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट log 1 प्लस एक्स बाई log 1 माइनस एक्स। तो बेसिकली log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई log 1 माइनस, सॉरी log 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाई दिस। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? ये वाली चीज वी कैन यूज हियर व्हेन प्रोवाइडेड एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे x का क्या हम क्या करेगा, h डिवाइड बाई l। अब here we'll use that concept of stressed string. Question says that this string is stressed. Stressed का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो h डिवाइड बाई l है that will go to 0। भाई उसमें जो seg है उसका, stress का मतलब क्या होता है, stress का मतलब है कि the string is almost straight, तो h जो होगा आपका जो seg होगा वो that will be almost 0, राइट? जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी, ये देखो, और इसमें देखो इसमें जो h है ना ये,
स्ट्रेच करेंगे तो मीन्स ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी स्ट्रिंग, तो एच विल गो टू जीरो। ठीक है, और वी कैन से दैट एच विल बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू लेंथ एल, सो दिस एच बाई एल विल गो टू जीरो। इनफैक्ट एच को भी जीरो ना करके वी कैन से कि एच बाई एल विल गो टू जीरो इन कंपेरिजन टू लेंथ, दिस एच विल बी वेरी स्मॉल, so h by l will be 0. So now we can use that approximation thing. अब h by l इसमें जीरो की तरफ जा रही है, तो ये क्या होगा, देखो l तो चलो ऐसे ही रहने देते हैं, वन माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर भी ऐसे रहने दो, डिवाइड बाई एच बाई एल भी ऐसे रहने दो। इसको हम किससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, टू टाइम्स x की जगह यहाँ पे h बाई एल है, x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री एंड प्लस एक्स फाइव एंड सो ऑन। हायर पावर्स को तो वी कैन नेग्लेक्ट, तो ये चीज आ गई हमारे पास। वैसे भी एक्सप्रेशन से भी हमें समझ में आ रहा है कि उसमें h पावर थ्री तक जा रहा है आई थिंक, तो वहां तक ही हमें जाना है। सो यहाँ से देखो एल टाइम्स वन माइनस एच स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और ये एच बाई एल को थ्रू आउट, अगर हम ये टू तो इधर लिया हो, चलो एच बाई एल से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो दिस इज वन प्लस एच स्क्वायर एल स्क्वायर थ्री एंड जो भी आगे, और ये हो गया आपका टू एल। अब इसको अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करें अगर वंस, तो ये हो गया, इसको करेंगे तो माइनस एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो दिस इज माइनस एच पावर फोर थ्री एल पावर फोर एंड सो ऑन, राइट। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कैसा है, दिस थिंग इज टू एल, दिस इज वन, और ये हो गया आपका वन थर्ड माइनस वन इज माइनस टू बाई थ्री एच स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और हायर पावर्स of h by l can be neglected. This is what we were proved. This will be the response. ठीक है, so this was 20 mark question. Good question. I think stress the string पे this is one of the first question in recent years, right? So ये है, so okay, so let's see next question. What is next question? हाँ देखो, suppose the cylinder of any cross section is balanced on another fixed cylinder, the contact of curved surface being rough and the common tangent line horizontal, right? The common tangent line horizontal है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी तो सिलेंडर है ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब इनके जो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी वो 90 पे होगी। ठीक है, तो वर्टिकल से जो एंगल होगा ये, जिसको देखो ये हमने डिस्कस किया था, इनफैक्ट डिराइव किया था इन द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, that this h, if h is less than rho 1 rho 2 divided by rho 1 plus rho 2 cos phi, where phi is the angle of this line joining the centers with the vertical, if this condition is satisfied then we say that this equilibrium is stable equilibrium। तो इसमें ये phi तो जीरो है, ठीक है, तो ये वाली जो चीज है ये हो जाएगा h लेस देन रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू, और ये रो वन को रो बोल रहा है, रो टू को रो डैश बोल रहा है। सो जो प्रूव था इस एक्सप्रेशन का जो प्रूव था, इनफेक्ट वही यहाँ पे करना है, दैट प्रूव वी हैव टू डिराइव हियर। ठीक है, सो वही प्रूव है, तो देखो प्रूव भी पूछ लिया जाता है, या दिस वाज फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर रखा है इनफेक्ट, जो स्टेबिलिटी वाला उसमें दिस प्रूव इज देयर, सो यू कैन रेफर दैट। और देखो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी वर्चुअल वर्क का ही है, अ चेन ऑफ एन इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स, right, is smoothly jointed together and suspended from its one end A1, right? A horizontal force is applied to the other end AN plus 1, A1, right? Find the inclination of the rods to the downward vertical line in the equilibrium configuration. Okay, so basically हमें जो configuration given है वो क्या है, that इस क्वेश्चन में जो है आपका दिस इज आई थिंक 15 मार्क क्वेश्चन, राइट। सो इसमें ये गिवन है हमें कि इस टाइप से रोड्स है, इस टाइप से एन रोड्स है, ठीक है, ये मान लो A1 है, दिस इज A2 A3 एंड सो ऑन, ये लास्ट वाला जो AN प्लस होगा यहाँ पे AN होगा, ये AN है, AN प्लस प्लस, बिकॉज N रोड्स है, यूनिफॉर्म रोड्स है। तो देखो फर्स्ट रोड का एंड पॉइंट A2 है,
तो nth रोड का एंड पॉइंट n+1 ही होगा, राइट। तो ये चीज होगी। अब ये एंगल मान लो हमने θ1 बोल दिया, ये एंगल θ2 बोल दिया, तो यहाँ पर एंगल जो होगा वो θn होगा, राइट भाई। जो A1 है वहां पे θ1 है, तो an पे θn होगा, राइट। अब इसमें देखो हर यूनिफॉर्म है रोड्स, लेट्स से कि रोड्स का वेट W है, इस रोड W बोल देते हैं, राइट। सबका यूनिफॉर्म लेंथ भी सेम ही T है, लेंथ चलो 2a बोल देते हैं इस रोड की, राइट। तो ये मिड पॉइंट पे इस पे वेट यहाँ पे W लग रहा होगा, राइट। तो देखो ये जो चीज है, इसको अगर ये तो लेंथ A हुई बिकॉज टोटल लेंथ 2a है, तो ये जो लेंथ होगी ये आपका a cos θ1 होगी, ठीक है। तो इसमें भी देखो ये आपका यहाँ से ये फिक्स है रोड, राइट। तो दिस इज द फिक्स लाइन। यहाँ से हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क लगा सकते हैं, और यहाँ पे देखो इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है P वेक्टर। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो दिस देयर इज दिस P वेक्टर फोर्स एंड देन द वेट ऑफ ईच रोड, सो दीज आर द ओनली फोर्सेस एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल वर्क टोटल वर्चुअल वर्क शुड बी 0, राइट। तो इसमें देखो इसके लिए अगर वर्चुअल वर्क लिखा जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे W एक्ट कर रहा है टू चेंज इनटू, इसी डायरेक्शन में है ये जो लेंथ है दैट इज a cos θ1, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रोड के लिए। अब सेकंड रोड पे जाएं तो यहाँ पे W ऐसे एक्ट कर रहा होगा, तो देखो ये जो लेंथ है यहाँ तक, यहाँ तक जो लेंथ है ये तो क्या हो जाएगी, बिकॉज टोटल लेंथ 2a है, सो दिस थिंग विल बी 2a cos θ1। और देखो वेट जो W होगा वो तो इसके मिड पॉइंट पे सेकंड रोड के, तो ये भी हमें लेना पड़ेगा, ये इसको आपने θ2 बोला है, और ये लेंथ a है, मतलब मिड पॉइंट है तो हाफ लेंथ a है, सो दिस थिंग विल बी a cos θ2। तो सेकंड रोड के लिए क्या होगा, प्लस W चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगी टोटल, यहाँ से वर्टिकल लेंथ देखेंगे हम तो ये लेंथ, और जो आपकी ये लेंथ, राइट, दोनों का जोड़ करना पड़ेगा हमें। तो पहली लेंथ तो क्या होगी 2a cos θ1, और सेकंड पार्ट की वजह से आएगा आपके पास a cos θ2। इस टाइप से चीजें चलती रहेगी। तो बाई सिमेट्री भी कैन से कि लास्ट में क्या आएगा, जो लास्ट मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट के लिए क्या आएगा, देखो यहाँ तक तो जो है इस वाली रोड के लिए तो जो लास्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका a cos θn हो जाएगा। इसका तो हाफ मिड पॉइंट आएगा, पर इससे पहले क्या हो चुका होगा, इससे पहले जो है 2a cos θ1 तो होगी, ऐसे प्लस 2a cos θ2 भी होगी, सारी रोड्स की लेंथ होगी यहाँ पे। इनफैक्ट ये जो यहाँ पे n-1 रोड होगी उसकी लेंथ भी आ चुकी होगी 2a cos θn-1, तो ये हो जाएगी आपके पास। तो दिस इज द वर्चुअल वर्क ड्यू टू द वेट, प्लस ये जो फोर्स P है इसकी वजह से वर्चुअल वर्क होगा भाई, फोर्स P यहाँ पे आपके पास, और इस फोर्स का डिस्टेंस क्या है यहाँ से, ये फिक्स पॉइंट है आपका। तो ये जो डिस्टेंस है इसके पैरेलल वर्क क्या होता है, वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हमें ये डायरेक्शन चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से मीन्स ये डिस्टेंस ऐसे सो ऑन जो भी डिस्टेंस बनेगी, ये डिस्टेंस तो क्या है 2a sin θ1, तो ये आएगी आपके पास 2a sin θ1। ऐसे सेकंड रोड के लिए 2a sin θ2, ऐसे nth रोड के लिए क्या आएगी 2a sin θn, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारे पास, ये शुड बी 0। अच्छा, चेंज P इंटू चेंज इन दिस थिंग शुड बी 0। अब यहाँ से जो भी हमें आंसर मिलेगा दैट शुड बी आवर आंसर, ठीक है। तो बस अगर इफ वी आर एबल टू राइट दिस इक्वेशन देन दिस इज डन। अब देखो यहाँ पे θ1 ये सब है क्या, वैसे θ1 θ2 सब वर्टिकल लाइन से एंगल से एवरी रोड के, राइट। θ1 θ2 एंड सो ऑन टिल θn, these are all independent variables, right, these are independent to each other, right, they are independent to each other। सो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं वेरिएबल्स है ये तो इंडिपेंडेंट है। अब इसमें देखो W को आप ले लो बाहर, देखो θ1 यहाँ पे भी आ रहा है cos θ1, यहाँ पे 2 cos θ1, यहाँ पे भी आ रहा है ये, इनफेक्ट ये cos θ1 देखो यहाँ पे भी आ रहा है, लास्ट तक आ रहा है ये। तो हम बोल सकते हैं इसको कि फर्स्ट रोड के लिए cos θ1 है, राइट, और लास्ट रोड के लिए भी, लास्ट रोड के लिए पूरा है cos θ1, राइट। सेकंड से लेके nth रोड तक के लिए तो 2a cos θ1 आ रहा है, बट फर्स्ट में जो है
अब वो a cos थीटा 1 ही है, मीन्स n-1 के लिए तो हमें मिल रहा है 2a cos थीटा 1, बट फर्स्ट रोड के लिए हमें मिल रहा था a cos थीटा 1। तो ये अब बेसिकली cos थीटा 1 के टर्म हो गए, तो अगर इनको क्लब करें तो ये क्या आएगा, 2an-2a plus a, or we can say this is 2an minus a, or we can say this is 2n minus 1a। ठीक है, तो ये cos थीटा 1 के टर्म हो गए हमारे पास। वी कैन से दैट cos थीटा 1 के टर्म क्या हो गए, 2n-1 cos थीटा 1। अब सिमेट्री से हम आगे बढ़ा सकते हैं, 2n, एक एक कम करेंगे माइनस, भाई थीटा 2 पे जैसे आएंगे तो एक रोड कम हो जाएगी, तो 2n-3 cos थीटा 2 एंड सो ऑन। जब cos थीटा n पे आएंगे, cos थीटा n तो वैसे डायरेक्ट भी दिख रहा है एक ही है, राइट, एक cos थीटा n, और एक होना भी चाहिए था क्योंकि देखो यहाँ पे ओड ही हो रही है चीजें, तो 1 3 5 इसी टाइप जाएगी चीज। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे चेंज तो है ही, देखो चेंज प्रिंसिपल ऑफ वर्च्यू अगर अप्लाई करें ना, प्लस p, यहाँ से 2a तो आप बाहर ले सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी a तो है हर जगह एक्चुअली, इस a को आप बाहर ही ले लो, और चेंज इन साइन थीटा 1, यहाँ तो नॉर्मल चीज है, साइन थीटा 2 साइन थीटा n, ठीक है। और ये डिफरेंशिएट कर दो, देखो a से तो आपका a कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा बच्चा क्या, यहाँ पे देखो 2n-1 कोस थीटा 1 को डिफरेंशिएट करें अगर हम लोग, so this will be minus sin theta 1 and change in theta 1, राइट, और w तो है ही, और ये तो हो गया थीटा 1 के लिए, और यहाँ के लिए थीटा 1 के लिए क्या आएगा, प्लस p टाइम्स कोस थीटा 1 चेंज इन थीटा 1। ये तो थीटा 1 वाली चीजें होगी। ऐसे थीटा 2 के लिए देखेंगे हम, तो ये क्या आएगा, 2n-3 साइन थीटा 2 विद नेगेटिव साइन, राइट, माइनस w, प्लस यहाँ से आएगा आपका p इनफैक्ट कोस थीटा 2 चेंज इन थीटा, दोनों में रहेगा चेंज इन थीटा 2, and so on we can write. Because this theta 1 theta 2 theta 3 all these are independent variables, so इसको देखो क्लब कर लिया जाएगा। ये चीज क्या होगी आपके पास, ये तो p तो 2 है ना, तो ये हो गया आपके पास 2p माइनस डब्ल्यू टाइम्स 2n-1, p के साथ cos थीटा 1 है, इस चीज को आप लिख सकते हो 2p cos थीटा 1 माइनस w 2n-1 साइन थीटा 1 चेंज इन थीटा 1, राइट, प्लस इस वाली चीज के लिए ऐसे ही सबके लिए लिखते जाए, वो लास्ट में जो आपका आएगा उसमें क्या है, लास्ट वाला मीन्स थीटा एन के लिए करेंगे, तो यहाँ से तो आ गया आपके पास 2p कोस थीटा एन, और w वाली चीज में क्या आएगा, माइनस w साइन थीटा एन और डेल थीटा एन। भाई थीटा एन वाली चीज जो है यही हुई ना, थीटा एन वाली चीज, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ गया आपके पास माइनस w साइन थीटा एन, और लास्ट में यहाँ पे जो है साइन वाली चीज ये है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2p cos theta n आ गया। Because theta 1 theta 2 and theta n are independent variables, so these all terms should be individually zero, the coefficient of del theta 1 del theta 2 and so on del theta n should be zero। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2p cos theta 1 minus w 2n-1 sin theta 1 this has to be zero। ऐसे ही दूसरे टर्म आएंगे, और लास्ट में क्या आएगा आपका 2p cos theta n minus w sin theta n this has to be zero, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, फर्स्ट एक्सप्रेशन तो आ गया आपका, देखो ये टेन थीटा 1 जो आया आपका, दैट इज 2p डिवाइड बाई w 2n-1, और ऐसे ही यहाँ से टेन थीटा n क्या है, दिस इज 2p डिवाइड बाई w, ऐसे आप टेन थीटा 2 बोल सकते हो, यहाँ पे 2n-3 हो जाएगा, सो दीज आर द these are the angles with the vertical line, theta 1 theta 2 and theta n, there are n angles, right, वो n angles ही उसने कुछ, it's a good question in fact, ठीक है। तो डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्चुअल वर्क कॉन्सेप्ट ओनली, सिमिलर क्वेश्चन एक्चुअली मैंने एक टेस्ट सीरीज में कराया था, पर उसमें यू कैन से कि उसमें जो
एक ब्लॉक था, सो उसमें इट मेक्स टू रोड्स हम बोल सकते हैं, इसने एन रोड्स करके जनरलाइज कर दिया उस टाइप की चीज, ठीक है। सो ये 2022 के क्वेश्चन थे इनफेक्ट, जो पॉपुलर एरिया उन्हीं से, कोई बाहर से नहीं है। देखो वही सब चीजें हमें पता है कि फ्रिक्शन से इस टाइप के क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन था वर्क वाला, ठीक है। प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है, उससे आ गया। कॉमन कैटनरी भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, उससे आ गया, ठीक है। एंड देन दिस स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे आ गया। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क आते ही है जनरली उससे, तो उससे भी ये दोनों क्वेश्चन कैन बी सॉल्व दैट। ओके सो दिस इज फॉर टुडे, राइट। अच्छा, अभी जो नया बैच है वो भी शुरू है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 15th में। उसकी डिटेल में मैं चीज़ें पोस्ट करूंगा इन 1 and 2 days। मतलब डिटेल्ड जो ब्रोचर तो पोस्ट हो गया है, बट वीडियो विल आल्सो पोस्ट। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस डेट 2023, ठीक है। देयर इज ऑफलाइन सेंटर एज वेल इन केस समवन वांट टू जॉइन द ऑफलाइन in Delhi or and the address is given in that brochure in back, ठीक है। सो और ऑनलाइन तो ऑफकोर्स हो गई। टाइमिंग इज 7 to 10 a.m. डेली, राइट। दिस विल बी 5 days in a week, ठीक है। और ये रहेगा वो मेटल वगैरह, वो जो भी नॉर्मल चीजें। देयर विल बी टेस्ट सीरीज एज वेल अलोंग विद दिस ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज इनफैक्ट। उससे की चीजें यू विल बी एबल टू सी कि कहाँ पे चीजें, मतलब हाउ आर यू प्रोसीडिंग, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।